Hello students, welcome back to your online classroom Study Nest. I am Deepak Sharma. Today we'll do a chapter of class 11th from the book Snapshots. The name of the story is Address and the writer is Marga Minto. So before I start the new chapter, again I request you all to subscribe the channel if you haven't done it till now and share it with your friends as well. So we start the chapter. Do you still know me? I asked. The woman stood at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. So a girl went to a house. She knocked at the door. The door was opened by a lady, and the girl who was out, she is Mrs. S daughter, means her mother is Mrs. S, and she asked the lady who was inside the house whether she recognized her or not. No, I don't know. And the reply she got was no, that she didn't knew her at all. I am Mrs. S daughter. So here she tells her identity that she is Mrs. S daughter. तो एक लड़की एक घर के दरवाजे को खटखटाती है, अंदर से एक महिला दरवाज़ा खोलती है और ये लड़की जो बाहर है वो उससे पूछती कि आपने मुझे पहचाना। अंदर जो लेडी है वो मना कर देती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो डोर भी इतना हल्का खोलती है, इतना कम खोलती है ताकि कोई व्यक्ति, जैसे कि किसी को आप अंदर जाने से रोक रहे हों। जब हम लोग बहुत हल्का डोर खोलते हैं मीन्स कि हम नहीं चाहते वो व्यक्ति हमारे घर के अंदर आए। सेम उसने भी किया था जो लेडी अंदर थी। शी हेल्ड हर आर्म ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. So the lady's face gave absolutely no sign of recognition. Means she refused to recognize the girl who was outside, and she opened the doors a bit only, a chink that the one who was outside may not enter inside. And she was staring continuously at her face. सो जो लेडी थी अंदर, उसने दरवाज़ा इतना हल्का खोला कि बाहर वाला व्यक्ति अंदर ना आ पाए और वो लगातार उसको चेहरे को बाहर वाली लड़की के देख रही थी. Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly. Fleetingly means at a glance, and that was years ago. Now the girl who was outside thought that she might be mistaken. She might have done a mistake, and she may have knocked at a wrong door. अब वो सोचती शायद उसने गलती करी हुई, क्योंकि जिस लेडी अंदर थी उसने उसको एक ही बार देखा था, वो भी एक ग्लांस में, बस नज़र भर के ही देखा था, और वो भी कई साल पहले की बात है. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, एंड वहाँ पे वो सोच रही है कि उसने किसी गलत घर की घंटी बजा दी. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. सो द वुमन लेट गो द डोर, उसने डोर छोड़ दिया और किनारे खड़ी हो गई. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन कार्डिगन. तो द फर्स्ट थिंग शी रिकग्नाइज्ड that she had not rung a wrong bell was she saw that the lady inside was wearing her mother's green cardigan. First important thing was her mother's green cardigan. तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, उसकी मदर का ग्रीन कार्डिगन जो लेडी अंदर थी वो पहने थी. अगर वो उसकी माँ को नहीं जानती थी, उसकी मदर का कार्डिगन कैसे पहन सकती थी. द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. द कार्डिगन हैड वुडन बटन. कार्डिगन के लकड़ी के बटन थे जो धोने से शायद पीले पड़ गए थे या कमज़ोर पड़ गए थे. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. The moment the lady who was inside saw that the girl outside was looking at the cardigan, she felt that the girl outside must have recognized that the cardigan belonged to her mother. तो जो लेडी अंदर थी उसने देखा बाहर वाली लड़की लगातार कार्डिगन को देखे जा रही है, तो उसको लगा कि शायद बाहर वाली लड़की ने अब पहचान लिया है कि ये कार्डिगन उसकी मदर का है. तो वो दरवाजे के पीछे छिप गई ताकि वो कार्डिगन पूरी रूप से ना देखा जा सके. लेकिन लड़की ने तो कार्डिगन देख लिया था. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड. अब वो लड़की समझ गई कि वो सही जगह आई है. उसने पूछा उस लेडी से जो अंदर थी कि आप मेरी मदर को जानती हैं, सही है ना. हैव यू कम बैक, सेड द वुमन. अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड, व्हाट द हैव यू कम बैक मीन्स शी वॉज like sure that nobody is going to come back.
If you remember, that was the story started at pre-war and this was post-war period. तो उसको लगा था कि कोई लौट के नहीं आएगा, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट नो वन हैड कम बैक, एंड उसने कहा कि मुझे लगा कोई वापस नहीं आएगा, मीन्स उसको उम्मीद थी कोई आएगा नहीं। अब क्यों उम्मीद थी और क्या ऐसा रहस्य था, ये दैट विल कम टू नो। ओनली मी, लड़की का केवल मैं बच के आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind. A musty smell emerged. So you remember they were standing at the threshold. They were standing at the entrance of a house. वो लेडी और लड़की की बातचीत दरवाजे पे ही हो रही है। अचानक पीछे से कोई डोर खुलता है घर में और बंद हो जाता है, और मस्टी स्मेल यानी सीलन की महक फैल जाती है। मीन्स घर में कोई और भी है, वो लेडी अकेले नहीं है, कोई और है जिसने दरवाज़ा खोला और बंद किया। I regret I cannot do anything for you. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. तो जो लेडी अंदर थी उसने कहा मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं तुमसे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो जो लड़की बाहर थी उसने कहा, मैं जो मिसेस एस की डॉटर, उसने कहा मैं स्पेशली तुमसे बात करने आई हूँ ट्रेन से यहाँ पे, मुझे तुमसे बात करनी है। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। सो द लेडी रिफ्यूज्ड टू टॉक टू हर, उसने कहा मैं तुमसे बात नहीं कर सकती अभी, और आगे भी मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। सो इट वॉज अ टोटल रिफ्यूजल दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू नाउ एंड लेटर ऑन ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. So this is one more important thing. It's an important line. उसने अपना सर हिलाया और दरवाज़ा इतने धीरे से बंद किया ताकि जो अंदर है उसको पता ना चले कि कोई बाहर आया था, वो डिस्टर्ब ना हो। इस मीन्स जो अंदर है उससे शायद उसको डर लगता हो, कुछ भय हो, उससे कुछ छिपाना चाहती हो। I stood where I was on the step. So the girl who was outside stood where she was. जो लड़की बाहर थी वो उसी जीने पे खड़ी रही। The curtain in front of the bay window moved. A curtain in front of the bay window. Bay window कौन सी विंडो होती है? जो दीवार से बाहर की तरफ निकली हो। कई बार आप देखें बहुत से घरों में ऐसी खिड़की होती है जो दीवार से थोड़ी बाहर की तरफ निकली होती है, तो वहाँ पे किसी ने पर्दा हिलाया, मीन्स अंदर कोई है। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. सो अब वो सोच रही है कि जो भी अंदर होगा उसने शायद उसकी तरफ देखा होगा, ये वो सोच रही है। जो लड़की बाहर है मिसेस एस की डॉटर, और उसने सोचा उसने उसकी तरफ देख के ये कहा होगा कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, ऐसा वो सोच रही है। ऐसा हुआ है कि नहीं वो हम लोग को नहीं मालूम। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड। और जब उसने पूछा होगा ये कौन आया है, तो लेडी ने कह दिया होगा कि कोई नहीं है। अब चूंकि दरवाज़ा बंद हो चुका है तो इसको नहीं समझ में आ रहा। ये जैसे कि एक तरह से आप कहिए लिप रीडिंग करना, कि इसको लगा जो अंदर है उसने उस लेडी से पूछा होगा कि कौन है, क्यों आया। इसने कहा नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉलिंग इट सेट। इसने फिर नंबर नेम प्लेट की तरफ देखा, उस पर लिखा था डॉलिंग इन ब्लैक लेटर्स एंड वाइट इनेमल। इट वॉज रिटन इन ब्लैक लेटर्स एंड द पेंट ऑन द शीट वॉज वाइट शीट पे ब्लैक इनेमल से लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैब a bitter higher number 46. Ab the number 46 is very important. This is the name, this is in fact the address, and the title of the story is also the address. और number 46 लिखा था जैब पे, जैब मतलब दरवाजे की चौखट पे। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. अब ये she is going back because the lady was inside refused to recognize her. No, she was not left with any other option. She had to go back. अब वो वापस जा रही, उसको याद आया ये एड्रेस उसकी मदर ने उसको बहुत साल पहले दिया था। It had been in the first half of the war. और जब फर्स्ट हाफ चल रहा था वॉर का, शायद तब दिया था। I was home for a few days and struck me immediately that something or other about the rooms had changed. उस समय वो अपने घर आई थी, ये याद कर रही है अपना पिछला। जब ये घर आई थी तो उसको लगा इसके कमरे में कुछ चीज़ें मिस कर रही हैं। जनरली होता है आप बहुत दिन बाद अपने घर आइए तो भी आपकी जो प्रिय चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आप रोज़ यूज़ करते हैं, आप तुरंत पहचान जाते हो चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं। आई मिस वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। और मदर भी आश्चर्यचकित रह गए कि मेरी बेटी ने इतनी जल्दी कैसे नोटिस कर लिया कि चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर अपेरेंटली। शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। अब उस समय वो पहली बार उसकी मदर मिसेस डॉर्लिंग वही है जिनके घर ये अभी अभी गई है और वापस आ रही। मिसेस डॉर्लिंग ने बताया, और ये इसने उनके विषय में कभी नहीं सुना था, और शायद वो उनकी मदर की पुरानी मिलने वाली थी।
और जिससे वो सालों तक नहीं मिली थी अपनी यानी मिसेस डॉलिंग इसकी मदर से मिसेस एस से सालों तक नहीं मिली थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अचानक ही वो इनकी ज़िंदगी में आ गई और अपनी दोस्ती पुनः बढ़ा ली। जब कोई पुराना बिछड़ा हुआ अचानक आ जाता है आपके जीवन में, तो हो सकता है उसके पीछे कोई मकसद हो, कोई रीज़न हो उसके पीछे, एंड द सेम रीज़न वॉज विद मिस डॉलिंग, और सेम शायद रीज़न मिसेस डॉलिंग का भी होगा। देन सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद से वो लगातार उनके घर आ रही है। एवरी टाइम शी लीव्स हर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। हर बार जब वो जाती थी इनके घर से, यानी मिसेस डॉलिंग मिसेस एस के घर से जब भी जाती थी तो कुछ ना कुछ सामान ले जाती थी उनके घर से, चोरी करके नहीं, मिसेस एस की सहमति से। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, जितनी भी कटलरी होती है सिल्वर की वो ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो एंटीक प्लेट्स जो वॉल हैंगिंग टाइप की होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं वॉल प्लेट्स, वो भी ले गई। शी हैड ट्रबल लैगिंग दोज लार्ज वासेस, वाज होते हैं जिसमें फ्लावर पॉट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहले पीतल के होते थे, और वो ले जाने में उनको थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन वो ले गई फिर भी। आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, एंड जो द मदर इज वरिड मीन्स मिसेस एस इज वरिड दैट उनके बैक में पेन होने लगा होगा इतना भारी सामान लेके। तो यर वी फाइंड दैट मिसेस एस इज अ वेरी सिंपल लेडी। यहाँ पे मिसेस एस का जो हम लोग को ऊपर कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है वो है कि मिसेस एस बहुत सिंपल लेडी है। वो लेडी एक एक करके सामान ले जा रही है और फिर भी ये उनके ऊपर भरोसा कर रही हैं, और इनको दर्द हो रहा है कि कहीं उनको कष्ट ना हो। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर। अब इसको लगा कि ये उससे कभी पूछ भी तो नहीं सकती कि वो कितनी दूर रहती है मिसेस डॉलिंग से। शी सजेस्टेड इट टू मी माई हरसेल्फ, शी even insisted. She wanted to save all my things. If we have to leave here, we shall lose everything, she said. और मिसेस डॉलिंग ने मिसेस एस से ये कहा था वो उनकी सारी चीज़ संभाल के सहेज के रख देंगी। जब युद्ध खत्म होगा, आफ्टर द वॉर, पोस्ट वॉर, शील कम बैक रिटर्न ऑल द थिंग्स। युद्ध के बाद वो वापस आएंगी, सारा सामान वापस रख देंगे, जो कि युद्ध के समय यहाँ पे कुछ भी हमला हो सकता है, उनकी सारी चीज़ें खराब हो सकती। इस विश्वास के साथ मिसेस एस अपना सारा सामान मिसेस डॉलिंग को देती जा रही थी कि युद्ध खत्म होने के बाद वो सारा सामान वापस दे देंगी। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। अब मदर को लगा कि बेटी को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होगा, और जनरली इन बातों पे कौन विश्वास करेगा कि अब मैं आपका सामान ले जा रहा हूँ और जब युद्ध खत्म होगा तो वापस कर दूंगा। युद्ध खत्म होने के बाद पता नहीं कौन बचे कौन ना बचे, और कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं जो सामान वापस कर दिया जाएगा। तो बेटी जो कि नई जनरेशन की थी उसको विश्वास नहीं हुआ। मदर ने कोशिश करी अपनी बेटी को समझाने की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद इन लोग की कोई बात नहीं हुई। Meanwhile, I had arrived at the station without paying much attention to the things on the way. तब तक ये लड़की वापस, अब ये वापस वहीं से आ रही मिसेस डॉलिंग के घर से स्टेशन पे आ गई। I was walking in familiar places for the first time since the war. अब ये उन्हीं सड़कों पे चल रही थी, उन्हीं जगहों से निकल रही थी जहाँ पे ये युद्ध के पहले यहाँ पे रहती थी, और उसी जगह से वापस निकल रही थी युद्ध के बाद। But I did not want to go further than was necessary. अब ये उससे आगे नहीं जाना चाहती थी। आगे जाने मतलब उन यादों से भी है उसका तात्पर्य, जो यादें इसकी माँ से जुड़ी थी। और वी कम टू नो दैट द मदर इज़ नो मोर। हम लोग को लगता है कि मदर नहीं होंगी, और जो व्यक्ति नहीं है उसके विषय में और उसकी चीज़ों से आप जब लगाव करते हैं तो आपको दुख ही मिलता है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड द हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ precious time. So she did not want to trouble herself, she did not want to upset herself with the things that belonged to her mother. वो अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी उन यादों से जो उसकी माँ से जुड़ी थी। In the train back I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. तो in the train she met Mrs. Darling. In fact Mrs. Darling से मिली नहीं है, Mrs. Darling को वो कल्पना कर रही है, उसे याद आ रहा। फिर आप ये मत सोचिएगा ट्रेन में मिसेस डॉलिंग बैठी थी, ट्रेन में बैठते तो फिर मिसेस डॉलिंग की याद आ गई कि कैसे वो मिसेस डॉलिंग से पहली बार मिली थी। उसकी मदर ने उसको नाम बताया था जब वो पहली बार मिली, अब उसको याद आ रहा था मिसेस डॉलिंग से कब वो मिली। It was the morning after the day my mother had told me about her. So if you remember, her mother told about Mrs. Darling. The next day she saw Mrs. Darling. अब उससे जिस दिन उसकी माँ ने मिसेस डॉलिंग के लिए बताया था, उसको अगले दिन ही उसको मिसेस डॉलिंग मिल गई।
आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर, उस दिन वो देर से सो के उठी थी, नीचे आ रही थी. आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, इसने देखा उसकी माँ जो है किसी को देखने बाहर गई. अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक लेडी थी जो कि थोड़ी सी मोटी थी. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकन टू मी. अब इसने मिसेस एस ने, जो कि इस लड़की की माँ थी, अपनी बेटी को दिखाते हुए कहा ये मेरी बेटी है. और मिसेस डॉलिंग ने थोड़ा संकेत देते हुए कहा ओके. मीन्स वो इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि जो सामान में. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with her heavy case. तो इसने अपनी माँ से पूछा क्या वो दूर रहती हैं. इसको इस बात की चिंता थी कि मेन चिंता थी अपने सामान की, लेकिन ये जानना चाहते थे मिसेस डॉलिंग दूर रहती हैं कि पास रहती हैं. इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर. अब ये फर्स्ट टाइम था इसकी मदर ने इसको एड्रेस बताया था जो उसने वहाँ पे याद किया था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. अब आपको याद होगा उसने वो नंबर पढ़ा था, उसने लिखा था नंबर 46. इट वॉज मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. आई हैड रिमेंबर्ड इट, और इसने उसको याद कर लिया था. बट आई हैव वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन इसने बहुत दिनों तक इंतजार किया, युद्ध के बीच में आ नहीं सकती थी, युद्ध के रुकने का इंतजार किया और फिर ये वहाँ पहुँची. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट stored stuff and naturally I was also rather afraid of. अब आज़ादी के बाद शुरुआत में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उन चीज़ों में, और जो कि मिसेस डॉलिंग ने अपने घर में रखी थी, और ये नेचुरल हो जाता. ये थोड़ा डरी हुई थी. डर इसको और कोई नहीं था, डर ये था वो चीज़ें जुड़ी थी इसकी माँ की यादों से जो इसको फिर इसकी माँ याद दिलाती. Afraid of being confronted with things that had belonged to the connection which that no longer existed. अब डर इसको इस चीज़ से था, कन्फ्रंट में फेस टू फेस आने का, उस चीज़ से जो इसका कनेक्शन उस चीज़ से जोड़ देगा जो चीज़ नहीं थी. वो चीज़ कौन है? इसकी माँ, जो अब दुनिया में नहीं है. तो वो सारी चीज़ इसकी माँ की ही थी, तो फिर उसकी माँ की तरफ ही ले जाएगी. और जब पुरानी बातें आप याद करते हैं तो दुख ही होता है. Which was hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. वो सारी चीज़ें जो कबर्ड्स में और बॉक्सेस में भरी थी, जब निकाल के लाई थी तो कबर्ड मिसेस डॉलिंग बॉक्स में लाई होंगी और अपने घर में कबर्ड में भर दी होगी. अब उनको निकाल के उन्हीं जगह पे वापस लगाना, वो जगह कौन सी है? उसका घर, जो कि अब रहा नहीं. But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened. अब चीज़ें सामान्य हो रही थी, धीरे धीरे युद्ध के बाद चीज़ें सामान्य होती हैं, और अब ये अपने बेड पे आराम से लेट सकती है. ऐसा इसने क्यों कहा? क्योंकि जिस समय युद्ध चल रहा होता, आप एक पल भी शांति से नहीं लेट सकते हैं, कब पता नहीं कहाँ पे हमला हो जाए, क्या हो जाए. अब ये आराम से लेट सकती थी. अ रूम विद अ व्यू यू आर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे. उस कमरे में जहाँ पे अकेली रहती थी और सारे दिन दीवारों को देखती रहती थी. ना माँ है, ना वो घर है, ना वो सामान है. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. और अचानक एक दिन इसके मन में वो सारी चीज़ें पाने की लालसा होती है, इसे जिज्ञासा होती है उन चीज़ों को वापस जानने की, लाने की. I wanted to see them, touch them, remember. अब ये उनको छूना चाहती थी, देखना चाहती थी और याद करना चाहती थी. याद किसको करना चाहती थी? उन चीज़ों के माध्यम से अपनी माँ को. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, फर्स्ट विजिट वो थी जब वो मिसेस डॉलिंग के घर गई थी. मिसेस डॉलिंग ने मना कर दिया था, वो उसको नहीं पहचानती. इसका मतलब अब समझ में आया मिसेस डॉलिंग ने क्यों मना कर दिया था, क्योंकि वो उनको वो चीज़ें लौटाना नहीं चाहती थी जो उन्होंने धोखे से मिसेस एस से ले ली थी. अब आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने क्यों मना कर दिया था. और वो किससे डर रही थी? अंदर कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वो डर रही थी, उसको ना पता चले कि इन्होंने किसी को धोखा दे के वो चीज़ें ली हैं. I decided to try a second time and now a girl of about 15 opened the door to me. अब ये दोबारा उसके घर गई मिसेस डॉलिंग के, और किस्मत अच्छी थी इस बार मिसेस डॉलिंग ने दरवाज़ा नहीं खोला. 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम. इन्होंने पूछा क्या तुम्हारी माँ घर पे है? नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरंड. उसने कहा मेरी माँ एक ज़रूरी काम से गई हुई है. नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर. अब इसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदर के लिए वेट कर लूँगी. अब ये वहाँ पे बैठी वेट कर रही है. आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. अब ये लड़की के पीछे पीछे रास्ते से गई. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर.
और वहाँ पे एक पुराने फैशन का लोहे का क्षमादान जिसमें मोमबत्ती वगैरह जलाई जाती है, शीशे के पास लटका हुआ था। ये बहुत बड़ा होता है ये, और इसको यूज़ करने में बहुत दिक्कत होती है, तो अब लोग इसको शोपीस की तरह ही यूज़ करते हैं। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने एडमिट भी किया, इसने स्वीकारा कि ये लोग उसका प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि एक कैंडल जलाने के लिए इतना बड़े कैंडल स्टैंड को यूज़ करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। वोंट यू सिट डाउन सेड द गर्ल। लड़की ने पूछा। अब दोनों ही लड़कियां हैं, एक मिसेस एस की डॉटर है, एक मिसेस डॉलिंग की डॉटर है। मिसेस डॉलिंग की डॉटर ने मिसेस एस की डॉटर से पूछा, तुम बैठोगी नहीं क्या? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ अ लिविंग रूम एंड वेंट इनसाइड पास्ट हर। और उसने अपने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया और ये उनसे पीछे पीछे चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है राइटर ने, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो। एक ऐसे कमरे में थी जिसको ये जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। जानती कैसे थी? क्योंकि सारी चीज़ें इसकी अपनी थी, इसकी माँ की थी जो मिसेस डॉलिंग ने धोखे से हथिया ली थी। और नहीं जानती थी क्योंकि अब वो चीज़ें इसकी नहीं रही थी, वो चीज़ें रिलेटेड थी इसकी माँ से, और इसकी माँ ही नहीं रह गई तो उन चीज़ों का कोई मायने नहीं रह जाता। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर। अब ये उन चीज़ों के बीच में थी जिसको ये देखना चाहती थी, जानना चाहती थी, लेकिन उस कमरे के विचित्र माहौल में। अब विचित्र कैसे हो गया अभी हम आई विल टेल यू। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज। अब वो चीज़ों को इतने टेस्टलेस तरीके से इंजॉय किया। जब आपके पास कोई सामान होता था आप उसको बहुत अपना होता, बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। जब किसी दूसरे का सामान यूज़ करते हैं तो आप उसको उतने, क्योंकि आपके कोई इमोशंस नहीं जुड़े होते, तो आप उस सामान को ऐसे ही यूज़ करके या तो फेंक देते हैं या ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए केवल एक वस्तु है। इट्स ओनली अ थिंग, अ सॉर्ट ऑफ एन आर्टिकल, नथिंग एल्स। लेकिन जब ये चीज़ किसी और से बिलोंग करती है, जब वो चीज़ बिलोंग करती है आपके अपने फैमिली मेम्बर से, और वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द चिल्ड्रन रिमेंबर दैट दिस पेन और समथिंग दिस वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर और माई ग्रैंड फादर, सो दोज थिंग्स बिकम प्रीशियस। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बहुत ही, जो आपको आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने दी थी। उन चीज़ों का दाम नहीं होते, वो चीज़ अनमोल होती हैं, उनके दाम नहीं होते। आज वो उन चीज़ों के बीच में थी, और मिसेस डॉर्लिंग चूँकि वो उनकी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही कमरे में भर दी थी चीज़ें, तो वो ऐसे ही उन्होंने रख दी लाके, क्योंकि उनको वो चीज़ें उनकी अपनी नहीं थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। अब डरते डरते इसने चारों तरफ अब चीज़ों की तरफ देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने एक चेयर खींची। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। ये बैठ गई और उस टेबल क्लॉथ को देखने लगी जो टेबल पे पड़ा था। शायद वो टेबल क्लॉथ भी इसी का होगा। आई रब्ड इट। ये उसको ढूंढने लगी, शायद ये को ढूंढ रही थी। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। और उसको रब करते करते इसकी उंगलियां गर्म होने लगी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। इसने लाइन्स देखी, ये लाइन्स तो वही थी, ये टेबल क्लॉथ तो इसके घर का ही था। यानी मिसेस डॉर्लिंग वो सारा सामान खुद यूज़ करने लगी थी, यानी एक प्रकार से धोखा। उन्होंने कहा था वो सामान ले जा रहे हैं, युद्ध के बाद वो सामान वैसे ही सुरक्षित वापस कर देंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सारा सामान खुद यूज़ कर रही हैं। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर। उसको याद आया इस टेबल क्लॉथ पे कहीं ना कहीं जले हुए का निशान होगा जो शायद कभी रिपेयर नहीं किया था, तो वो टेबल क्लॉथ पे आज भी होना चाहिए। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। मेरी मदर जल्दी आ जाएंगी, मैंने उनके लिए चाय बना ली है, क्या तुम भी चाय पियोगी? थैंक यू। थैंक यू कहा किसने? मिसेस एस की डॉटर ने। आई लुक्ड अप। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टेबल। इसने ऊपर देखा, जो टेबल पे लड़की कप रख रही थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक अ मदर। जैसे कि मदर भी मोटी थी, ये भी मोटी थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। वो चाय जो थी एक वाइट केटल से, वाइट पॉट से कप में डाल रही थी। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। और उसके लिड पे, उसके ढक्कन पे गोल्ड कलर का बॉर्डर भी था। आई रिमेंबर्ड, इसको याद आ गया, ये भी उसी का था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। उसने बॉक्स खोला और कुछ चम्मचें निकाली।
दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। ये भी, दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट डज इट मीन्स? दैट्स अ न्यू बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। माई ओन वॉइस मीन्स उसने बोला नहीं, उसने मन में सोचा। उसने सोचा कि ये स्पून्स कहाँ से निकालनी है, बॉक्स से। और बॉक्स किसका है? बॉक्स भी उसी का था, उसकी ही माँ का। ये अक्सर तब होता है जब आप अपनी ही कोई चीज़ पा लेते हैं, तो और कि भले आपकी कोई चीज़ कोई भी चोरी कर ले और आप उसको कितने ही सालों बाद देखो, आप उसको पहचान लोगे। सामने वाले के लिए आश्चर्य की बात होती है कि आपने अपनी चीज़ कैसे पहचान ली, लेकिन अपनी चीज़ से जो आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है वो आपको बता देता है। कहीं ना कहीं हजारों चीज़ों के बीच में आप अपनी चीज़ पहचान लेते हैं। वो चीज़ जो एक नॉन लिविंग होती है, जिसमें जान नहीं होती है, वो भी कहीं चीख चीख के कहती है कि मैं तुम्हारी ही हूँ। शी ओप इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। वो आवाज़ बिल्कुल अलग सी लगी, ऐसे लग रहा था इस कमरे की हर आवाज़ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सामान तो इसी का है, लेकिन किसी ने धोखे से ले लिया। ओह यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। उसने कहा तुम इसको जानती हो, इन सामान को, सारे को तुम, ऐसे लगता है तुम तो उसको पहचानती हो। वो लड़की जो थी मिसेस डॉलिंग की, वो चोर रही थी। उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसकी माँ ने ऐसा किया। वो तो बेचारी ये समझती थी सारा सामान उसी का है। शी लाफ, माई मदर से इट इज़ एंटीक। उसने कहा मेरी मदर कहती है सारा चीज़, सारे सामान एंटीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये मीन्स पुरानी शैली की चीज़ें हैं सारी। वी हैव गॉट लॉट मोर। उसने कहा हमारे पास ऐसा बहुत सा सामान है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योरसेल्फ। उसने कमरे में सब तरफ दिखाया, देखो अपनी तरफ से। और इसको देखने की ज़रूरत ही क्या थी, सारा सामान तो इसी का था। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। उसने ज़रूरत नहीं समझी उसकी उंगली को फॉलो करने में, क्योंकि इसको मालूम था कमरे में क्या क्या सामान, और सारा सामान उसी का था। आई न्यू विच थिंग शी मेंट। इसको मालूम था वो किस चीज़ों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। अब मैं देख देख रही थी टी टेबल के ऊपर। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। अब इसने हमेशा, प्यूटर होता है अलॉय टिन और लेड का, जिसको कांसा भी कहते हैं, और इसमें हमेशा अच्छा लगा था कि उस कांसे की प्लेट पे एप्पल हो और ये खाए। ये वो प्लेट होती है जो सजाई जाती है ना, जिनको वॉल प्लेट कहते हैं। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और मिसेस डॉलिंग की बेटी ने कहा कि हम लोग सब यूज़ करते हैं, और वो जो प्लेट जो दीवार पे लटकी हैं हम लोग ने उसमें भी खाना खाया है। अब ये वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, जब वो चीज़ आपकी नहीं होती है तो आपको उसका इस्तेमाल भी नहीं मालूम होता है, आपको उसका यूज़ भी नहीं पता होता, आपको उसकी वैल्यू भी नहीं पता होती है। तो वो चीज़ें मिसेस डॉलिंग की थी नहीं, तो वो चाहे उसने खाना खाया या पानी पिए, इससे क्या मायने रखता है। लेकिन जो प्लेट्स दीवार पर सजा जाती है उस पर खाना जिसकी होएगी वो तो नहीं खाएगा कभी, उसको मालूम है कि ये तो दीवार पे टांगने वाली है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल। तभी इसको टेबल क्लॉथ पे वो बर्न मार्क मिल गया, जिससे पता चल गया टेबल क्लॉथ भी उसी का है। द गर्ल लुक क्वेश्चनली एट मी। लड़की एक इसकी तरफ, मिसेस डॉलिंग की बेटी, मिसेस एस की बेटी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक प्रश्न था कि तुम क्या ढूंढ रही हो। येस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। उसने कहा कि तुम, मिसेस एस की डॉटर ने कहा कि हम लोग अपने घर की चीज़ों को देखते हुए इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग उनको ध्यान ही नहीं देते वो है कि नहीं। लेकिन यही चीज़ें जब मिस होती हैं या कहीं और दिखाई पड़ती हैं तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये चीज़ हमारी है। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके पास बहुत सारे पेन होंगे, और ज़रूरी नहीं आप वो हर पेन रोज़ यूज़ करते हो, लेकिन जिस दिन खो जाएगा और आपको ज़रूरत होगी उस दिन आपको पता चलेगा कि वो पेन आपके पास नहीं है। ऐसे ही घर की हम लोग हर चीज़ को रजिस्टर में लगा कर टिक तो करते नहीं हैं कि अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन वो चीज़ उस जगह ना हो तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो चीज़ मिस कर रही है। बट इट हैज़ टू बी रिपेयर और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। और जब कोई चीज़ नहीं मिली होती है तब आप उसको ढूंढते हैं, हो सकता हो रिपेयरिंग के लिए गई हो या फिर उसको आपने किसी को दे दी हो। अब यहाँ पे इसने अपने मन की बात कह दी। लेंट मतलब इसकी माँ ने लेंडी तो किया था सारा सामान, और मिसेस डॉलिंग ने बोरो किया था इस विश्वास के साथ कि जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो चीज़ें आपको वापस कर दी जाएंगी। लेकिन युद्ध भी ख़त्म हो गया, उन्होंने चीज़ें भी सारी रख ली। यहाँ तक कि मिसेस एस की डॉक्टर जब उनसे मिलने आती तो उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया था।
वो सारा सामान यूज़ कर रही थी, या मिसेस एस का स्वेटर भी पहन रही थी, कार्डिगन भी पहन रही थी, टेबल क्लॉथ भी वही था, टी पॉट भी वही था, कप्स भी वही थे, दीवार पे प्लेट्स भी वही थी, सारा सामान वो यूज़ करने लगी थी, यानी उसने मिसेस एस को धोखा दिया था। Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I could help her polish the silver. अब ये कह रही थी, इसने कहा एक बार मुझे याद आ रहा है, मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉलिंग की डॉटर से कह रही है, एक बार मुझे याद आता है मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि सिल्वर पॉलिश कर दो, जो चांदी के बर्तन होते हैं उसको जो काले पड़ जाते हैं तो पॉलिश करा जाता है। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। बहुत पुरानी बात है और शायद उस दिन मैं बहुत थकी थी या मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और शायद उन्होंने मुझसे इससे पहले कभी ये सब काम करने को नहीं कहा, पहली बार मुझसे कहा था। आई आस्क्ड विच सिल्वर, तो इसने पूछा किस सिल्वर की बात कर रही, किस चांदी के बर्तनों की आप बात कर रही। शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून फोक्स एंड नाइफ ऑफ कोर्स। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी माँ को। अब यहाँ पे मिसेस एस की डॉटर अपनी माँ की बात याद कर रही है। उसकी माँ ने एक बार उससे कहा कि ये चांदी जो है उसको पॉलिश कर दो, साफ़ कर दो, तो इसको आश्चर्य हुआ चांदी कहाँ है। तो इसकी माँ ने कहा जो हम लोग नाइफ, जो स्पून्स, जो फोक्स, जो कांटा यूज़ करते हैं सब चांदी के बने। दिस शोज दैट दे बिलोंग टू अ वेरी वेल्दी फैमिली। इससे पता चलता है ये लोग अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे। तब इसको पहली बार पता चला कि जो हम लोग कटलरी यूज़ करते हैं वो सारी चांदी की बनी हुई है। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और वो सबसे आश्चर्य की बात थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। अब उसको उस समय पहली बार पता चला कि जो कटलरी वो यूज़ करते हैं डेली यूज़ में वो सिल्वर की बनी है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की को इस बात पे हंसी आ गई। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, आई लुक इंटेंटली एट। अब मिसेस एस की डॉटर ने मिसेस डॉलिंग की डॉटर्स का, मुझे विश्वास है तुम्हें भी नहीं पता होगा कि ये चांदी की है। तो उसको तो पता ही नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज़ें उसकी थी नहीं। मिसेस एस की डॉटर को तो पता ही था क्योंकि वो चीज़ें उसी की थी। वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड। वेल डू यू नो, तो बोली क्या जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। तो बोली हाँ, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी उसको संकोच लगा क्योंकि उसको सच में नहीं मालूम था। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई विल लुक, इट्स इन देयर। तो कहती है ड्रॉर खोलती है, किनारे जाके दराज खोलती है, कहती है मैं देख के बताती हूँ। आई जम्प्ड अप, अब ये तुरंत उठ खड़ी होती है क्योंकि अब ये और उन चीज़ से कन्फ्रंट नहीं होना चाहती थी, वो उन चीज़ों के आमने सामने नहीं होना चाहती थी जो चीज़ें इसकी माँ को के थी, उसकी माँ को बिलोंग करती थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दुखी हो चुकी थी। इसको लगा था कि इसकी माँ ने कितना विश्वास किया मिसेस डॉलिंग पे और उन्होंने उसको धोखा दे दिया। अब जब धोखा ही दे दिया तो इन चीज़ों से, अब माँ ही नहीं रह गई तो इन चीज़ों से मोह ममता क्या करना। और अब उसको वो वहाँ पे नहीं रुकना चाहती थी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। उसने कहा मुझे देर हो रही, मुझे ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, तब तक उसने ड्रॉर पे अपना हाथ था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। ये दरवाजे तक पहुँची। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, लड़की ने तब तक ड्रॉर खोल दी थी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, इसने कहा नहीं, मैं अब रास्ता अपना खुद ही ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक। जब ये बाहर आ रही थी तो उसको आवाज़ आई, किसी ने चम्मच और फोक्स वगैरह निकाले, उनके गिरने की या हिलने की आवाज़ आई। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट। अब ये बाहर आई, इसने फिर नेम प्लेट की तरफ देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट ही लिखा था उस पर। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46। इसको याद आया ये गलत एड्रेस पे नहीं आई थी, लेकिन गलत समय पे आ गई थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस सही था, बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। अब उस एड्रेस को याद करना नहीं चाहती थी। उसने सालों तक उस एड्रेस को याद किया, याद रखा जो उसकी माँ ने बताया था, इस विश्वास के साथ माँ नहीं सही, माँ की चीज़ों के साथ जो लगाव है उन चीज़ों के साथ ही अपनी माँ को याद कर लेगी। लेकिन आज इसका दिल टूट गया जब इसको माँ पता चला कि इसकी माँ को उस लेडी ने, जो उसकी माँ बहुत सरल और सीधी थी, उसको धोखा दिया और वो सारी चीज़ें ना केवल अपने घर में रखी बल्कि यूज़ भी करने लगी और उसको पहचानने तक से इनकार कर दिया। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former time instantly lose their values when served from them. You see them again in strange surrounding. अब इसके कहा कि जो सारी चीज़ें लिंक थी इसके पास्ट से, वो सारी चीज़ों से इसका सारा कनेक्शन, सारा मोह, सारा लव, सारे इमोशंस ख़त्म हो गए थे। जब आपको मालूम पड़ता है वो सारी चीज़ें एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में, जो
सामान आपके घर में हो, किसी दूसरे घर में भूसे की तरह भर दिया जाए, तो आप अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, उस सामान की वैल्यू ख़त्म हो जाती है. And what should I have done with them in a small rented room where the shred of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. अब यहाँ पे अपने आप को और भी कंसोल कर रही है, ये अपने आप को समझा रही है कि वो क्या करेगी उन चीज़ों को लेके. अब वो जिस कमरे में रहती है वो कमरा बहुत छोटा सा कमरा है, जिसमें खिड़कियों पे ब्लैकआउट जब हो जाता है, जिसमें लाइट बाहर ना जाती तो खिड़कियों पे वो लगा देते हैं, कागज़ या कपड़ा लगा देते हैं. उन जिस कमरे में रहती है उसकी खिड़कियों पे फटे पुराने कागज़ लिपटे हुए हैं, इतनी जगह ही नहीं है वहाँ पे. और जो ड्रॉर है इसकी टेबल की वो इतनी छोटी है कि उसमें कुछ सामान, थोड़ा ही बहुत ही सामान जा पाएगा. वो क्या करेगी इस सामान को. अब यहाँ पे दो बातें वो रिजेक्ट कर रही है. दिस क्वेश्चन कुड कम इन योर टेस्ट कि वो दो, देयर आर टू रीजन व्हाई शी रिजेक्टेड, व्हाई शी वांटेड टू फॉरगेट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल शी डिडंट वांट टू कीप एनी टच विद द थिंग दैट बिलोंग टू हर मदर नाउ. अब वो उन चीज़ों को कोई टच नहीं रखना चाहती थी जो उसकी मदर को बिलोंग करती हैं. ऐसा नहीं कि अपनी माँ से नाराज़ थी, लेकिन वो नाराज़ थी उन लोगों से जिन्होंने उसकी माँ को धोखा दिया. वो सारी चीज़ों को इस तरीके से भूसे की तरह कमरे में भर के रख दिया और बहुत सा सामान यूज़ करने लगे. दूसरी बात, उसको लगता था उसका अब जिस कमरे में रह रही वो इतना बड़ा कमरा नहीं जहाँ पर वो सामान रख सके, इवन कटलरी तक वो उसकी ड्रॉर में फिट नहीं होगी. रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. अब उसने सोच लिया था कि उसने इरादा कर लिया था कि वो इस एड्रेस को कभी याद नहीं रखेगी. वही एड्रेस जो उसकी माँ ने उसको बताया था, जो उसने आज तक याद किया. ऑफ ऑल द थिंग आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजी. और जो सारी चीज़ें उसको भूलनी थी उसमें सबसे आसान था उस पते को भूल जाना, उस एड्रेस को भूल जाना. So this story is related to a girl who after the war came back to claim for her mother's belonging, but finally she discovered that the lady who had taken the things betrayed her mother. और उसको जो लड़की अपनी माँ का सामान युद्ध के बाद देने आई, उसको पता चलता उसकी माँ को धोखा दिया गया, सारा सामान ले लिया गया, उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया. तो इसके मन में इतना दुख हो गया, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए उस चीज़ को एक बार देखने से, उस सामान को देखने के लिए. सामान को देखने से शायद उसके मन भर गया. उसने देखा कि सामान को किस तरह से यूज़ किया, लोग दुनिया में कैसे धोखेबाज होते हैं. उसका मन टूट गया. उसने प्रण कर लिया कि वो उस एड्रेस को दोबारा कभी ना आएगी, ना अपने जीवन में याद रखेगी. दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. नाउ गो थ्रू द चैप्टर and subscribe the channel, share it with your friends. Thank you.